Welcome to Digital Control Systems Practical. Today we are going to study the lab number 9, Digital Controller Design using MATLAB Built-in Tools. The learning objective of this lab is to design the digital controller using MATLAB built-in tools such as the PID tool, CISO tool, and Simulink PID tuning. What is CISO system? System having one input and one output. For example, if you consider the position control system that has only one input and one output. Go to PID controller. What is PID controller? Proportional, integral, and derivative controller. It produces an output which is the combination of the output of the proportional, integral, and derivative controller. In case of the derivative controller, we are having the steady state error problem. In case of the integral controller, we are having the stability problem. So these two problems also overcome by this PID controller. Basically, PID controllers are used in most automatic process control applications in industrial today to regulate the flow, temperature, pressure level, and many other industrial process variables. And what are the advantages of PID controllers? The advantage of PID controller is its flexibility and easy to be implemented, and also its reliability and the stability. Here is the block diagram of the PID controller. The input of this controller is the error signal, and your output must be proportional to the combination of the error signal, integral of the error signal, and the differential constants. MATLAB built-in tools. Basically, in this lab, we are using three tools. First one is the PID tool, and the second one is the CISO tool, and the third one is the Simulink PID tuning. Introduction to the CISO design tool. First, first you can open the Simulink and then select the blank block, and then go to the library, and then go to the control systems and select the CISO design tool. After this, a window is appeared and different options are available. In architecture, you can design the architecture of your controller. As a control engineer, you can design, you can say that design or architecture the controller, and according to your system need, you can set your different goals. For example, you can say that in different systems, we are having different performance goals and different requirements. And आप कह सकते हैं कि अगर आप एक एफिशिएंट कंट्रोलर डिजाइन करने लगे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप इनपुट के ऊपर ये रिसोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके डिजायर्ड आउटपुट किस तरह की आती है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे वो आर्किटेक्चर डिजाइन को प्रॉपरली आपको बता रहे हैं कि किस तरह से डिजाइन करते हैं, ठीक है? CISO design for CISO design task. Basically, we can use the root locus technique for check the stability of our control system by plotting the poles and zeros location. Here is the control architecture. Basically, control architecture is different from system to system, because different system having different requirements, and according to your system,
you can define your architecture, and you can implement different techniques for your controller. And you can go the compensator editor and the analysis plot. Basically, compensator editor is used to add different poles and zeros by right clicking in the window pole and zero window. And the next one is the control and estimation tool, and also you can go the analysis plots. Analysis plot is basically based on the system response. For example, if you take the step response, impulse response, एंड इसके अकॉर्डिंगली जब आप उसके पोल्स और जीरोस की लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको किस तरह से प्लॉट किया जाता है वो आपके एनालिसिस प्लॉट के पार्ट में काउंट की जाती है वो चीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्राफिकल ट्यूनिंग के ऊपर, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हम अपने प्लॉट को या जो हमारी फिगर होती है हम उसको जरा खूबसूरत तरीके से पेश करना चाहते हैं। उसके लिए अब आपने कोई भी पिक्चर ली है, जैसे वो रूट लोकस की है, उसमें आपके सिस्टम की बताता है कि इस पार्ट पे जाके आप अपने सिस्टम को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरह से आप उसका ग्राफिकल ट्यूनिंग करते हैं ये आपके ऊपर बेस करता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज करते हैं ग्राफिकल ट्यूनिंग का, ठीक है। ट्यूनिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है मैनुअल, एक होती है ऑटोमेटिक, ठीक है। कुछ सिस्टम्स में जो कंट्रोलर्स यूज किए जाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास जो सिस्टम है या जो कंट्रोलर जो भी यूज किया जाता है वो बेसिकली हमारे पास क्या हो, ऑटोमेटिक हो, ठीक है। अब कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें बताते हैं कि आप क्या ले, मैनुअल ले, ठीक है। इसी तरह ट्यूनिंग दो तरह की होती है, एक मैनुअल होती है और दूसरी क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। ये बेस करता है कि आपका जो सिस्टम है या इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह से डिजाइन किया गया, मैनुअली ऑपरेटेड है कि ऑटोमेटिक ऑपरेटेड है, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि ट्यूनिंग जो होती है वो बेसिकली किस तरह से होती है, ठीक है। ट्यूनिंग के लिए बेसिकली हम 4 स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो जितने भी पीआईडी कंट्रोलर्स होते हैं वो मोस्टली ऑटोमेटिक बेस्ड कंट्रोलर्स यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम लोगों ने ट्यूनिंग करनी है, उसको किस तरह से हम लोग पीआईडी में ट्यूनिंग करेंगे, उसके लिए 4 स्टेप्स को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। उसका फर्स्ट वन जो होता है वो होता है कि सेट ऑल गेन्स टू 0। उसमें हमारे पास प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव के जो गेन्स होते हैं उसको हम लोग 0 सेट कर देते हैं। सेकेंड ऑप्शन में वो कहते हैं कि इंक्रीज द पी गेन until the response to our disturbance is steady oscillation, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो होता है वो बेस करता है इंक्रीज द डेरिवेटिव गेन until the oscillation go away। ये बेसिकली आपके क्रिटिकल डैम के क्राइटेरिया में ये स्टेप लाई कर रहा होता है, ठीक है। फोर्थ में हम लोग रिपीट करते हैं स्टेप 2 और 3 को until the increasing the derivative gain does not stop the oscillation। ये बेसिकली 4 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हुए किसी भी पीआईडी को ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इस ट्यूनिंग को हमने क्यों किया, पीआईडी को हमने ट्यून ही क्यों किया। बेसिकली हम एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जब हमारे पास हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस होते हैं, वो डेमोस्ट्रेट कर रहे होते हैं नीड फॉर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो उस स्टेज के ऊपर हमें इसको ट्यून करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्यून करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, जब हम लोग टेम्परेचर के प्रोसेस को यूज कर रहे होते हैं तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर बेसिकली रिड्यूसेस द डेरिवेशन फ्रॉम द सेट पॉइंट एंड reacts to the disturbances or set point change rapidly with the minimum overshoot। इसको मैं आपको बड़े उसमें बताती हूँ कि बड़े आसान लफ्जों में बताती हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम इसको ट्यून करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ओवरशूट को बड़ी तेजी के साथ उसको डिक्रीज करता है, मिनिमाइज करता है, ठीक है। उसके बाद
ये रिएक्ट करता है, हमारे पास जो डिस्टर्बेंसेस आ रही होती हैं जिसकी वजह से ओवरशूट होता है, उसको ये रिएक्ट करता है, उसको कम करता है, उसको नीचे लेके आने की कोशिश करता है। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से जब मैंने रिएक्ट टू द डिस्टर्बेंसेस का ऑप्शन को टिक किया तो उसने एकदम से ओवरशूट को कम करके नीचे ले आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोग पीआईडी की ट्यूनिंग किस तरह से करते हैं मैटलैब में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैटलैब में जाते हैं, उसमें पीआईडी ट्यूनर के नाम से एक चीज होती है, उसके लिए हम लोग उसको उस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग इसकी एक कमांड यूज करते हैं, पीआईडी टूल सिस्टम एंड टाइप करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, आप किस टाइप का कंट्रोलर यूज करने लगे हैं। ठीक है, बेसिकली जब आप पीआईडी कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हैं तो एक विंडो ओपन होती है। मैंने आपको पिछले लैब में बताया था, सबसे ऊपर आ रहा होता है कि आप उसमें पीआई सिलेक्ट कर रहे हैं, पीडी कर रहे हैं या पीआईडी पूरा ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप अकेला पी यूज करते हैं तो आप उसके ऊपर टिक, पीआई यूज करते हैं तो उसके ऊपर टिक करके आप उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, आप डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम नीड्स आप डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर के कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इंटेग्रल्स के किस तरह से फॉर्मूलाज होते हैं और जब हम लोग इसको डिस्क्रीट में लेके आते हैं तो इसके किस तरह से कंट्रोलर्स की इक्वेशंस बनती है। बेसिकली जो इसके के आई, के पी और के डी के गेन्स होते हैं किस तरह से ड्राइव किए जाते हैं, ये उस चीज की विंडो है। विंडो यहाँ पे शो की गई है आपको। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल ली, बड़ी आसान सी। ये एग्जांपल मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसमें भी बड़ी क्लियरली आपको शो हो रहा होगा। बेसिकली क्या होता है कि आप ये सिस्टम लिया मैंने, जी ऑफ एस इक्वल्स टू 1/s+1 की 3। उसके बाद मैंने जी इक्वल्स टू जेड पी के 0 पोल गेन लिया। ठीक है, उसके बाद ये मैंने सेट करके इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया, उसने मुझे इसका ट्रांसफर फंक्शन दे दिया और उसके बाद मैंने एंड पे लिखा कि प्लॉट पीआईडी, तो उसने मुझे इस तरह का एक स्टेप रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, आप कंट्रोलर टाइप आपको ये शो हो रहा होगा, ऊपर पीआई है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। पीआईडी है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वो कहते हैं कि किस तरह का कंट्रोलर आपने यूज करना है, और फिर आप ट्यून का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होता है। पहले आप यहाँ पे जो आपकी राइट साइड पे विंडो है एक, उसके ऊपर वो कहते हैं कि आप कंट्रोलर्स में जाएंगे तो पीआईडी कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं। जब उसको आप ब्लैंक मॉडल के ऊपर प्लेस करते हैं, जब उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं उस आइकन के ऊपर, तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होती है। मैं आपको जब वीडियो चलाऊंगी तो उसमें बड़ा क्लियरली है। तो उसमें आप इसमें पीआईडी सिलेक्ट करते हैं, अगर आप उसको ट्यून करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्यून का ऑप्शन होता है, उसको आप ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को ही मैंने वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सीपीआईडी जो होता है ये बेसिकली पीआईडी कंट्रोलर के लिए कमांड यूज की जाती है। उसके बाद ये इसका आपको एक स्टेप रिस्पॉन्स नजर आएगा। ये बेसिकली आपका लैब टास्क है जो आप लोग परफॉर्म करेंगे। लैब टास्क बेसिकली पीआईडी कंट्रोलर है, आपने सिंपल उठा के कंट्रोलर प्लेस कर देना है। इनपुट के ऊपर आपने क्या करना है, स्टेप सिग्नल ले लें या इम्पल्स सिग्नल ले लें, पीआईडी कंट्रोलर प्लेस कर दें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ट्यून करना है तो ट्यून का ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने लोड डिस्टर्बेंसेस के ऑप्शन को किस तरह से यूज करना है मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। और जियो ऑफ एस इधर है पड़ा। सबसे पहले क्या है कि आपने जियो ऑफ एस को सॉल्व करना है। जियो ऑफ एस को जब आप सॉल्व करेंगे उससे आपने रन करके आपने केपी, केआई और केडी की वैल्यूज निकालनी है। जब वो वैल्यूज आ जाएंगी तो आपके लिए उससे इस सिस्टम को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपकी उसको सॉल्व करने के लिए बड़ा क्लियरली सेटलिंग टाइम दिया हुआ है, परसेंटेज ओवरशूट दिया हुआ है। ठीक है, इसको यूज करते हुए आप बहुत आसान, ये एक एग्जांपल है, आप इसको यूज करते हुए इसको बड़े आसानी से आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं।